Welcome students in my YouTube channels. Okay, today we describe the topic. This is the very important multiple ovulation embryo transfer. Why we are study them? What is the needed MOT? MOET means multiple ovulation embryo transfer. So this is the main reason why they studying about them, because you know about them day by day they increase the population and they require the more milk and milk production. So for the fulfill this requirement we use the technique is responsible for the fulfill they are required through the MOET. Okay, so what is the multiple जो MOET क्या है, multiple ovulation embryo transfer. How can the multiple ovules form and how can they transfer into the embryo? They are different process. Okay, and that is occur in case of female cow, that is used for them for the production of the number of breed of cow, good variety of cows and good producing milk animals, means quantity, as well as the improve the quality of cow. Okay, so what is the multiple ovulation embryo transfer? Means what is the MOET? Inside them multiple embryo transfer we study about them. What is the MOET? किसको कहते हैं हम? What is the process that occur inside them? इसके अंदर कौन कौन सा प्रोसेस यूज किया जाता है? How can they develop the multiple ovulation process and what is the advantages? इसका advantages क्या है for the human beings? Okay, so let us first find what is the MOET, means multiple ovulation embryo transfer. ये है क्या? The MOET is the technique. This is the multiple ovulation embryo transfer is the technique in which multiple eggs are fertilized in an animal and the embryo is collected on the 7th day without any surgery. ठीक है, तो मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र क्या है कि एक टेक्निक है जिसमें हम मल्टीपल एग्स आर फर्टिलाइज इन एनिमल्स, एक एनिमल के बॉडी के अंदर मोर देन वन एग को फर्टिलाइज करते हैं एंड देन एम्ब्रियो इज कलेक्टेड ऑन द 7th डे, और उसके बॉडी से 7 डे के बाद जब जो एम्ब्रियो होता है आपका 8 to 16 सेल स्ट्रक्चर हो जाता है, ठीक है, मीन्स नियर अबाउट 7 days आफ्टर फर्टिलाइजेशन दे कलेक्ट देम विदाउट एनी सर्जरी, बिना एनी सर्जरी किए हुए, एंड देन ट्रांसफर इनटू द अनदर फीमेल या सरोगेट animals. That is clear. So what is the MOET? Clear हुआ? MOET means multiple ovulation embryo transfer. Okay, what is the topic that is used inside them? Multiple ovulation embryo transfer technology. Inside them there are different process that is involved. Just like you see, first one is issue improved chances of successful production of hybrids.
ठीक है। इसका एक तरह से इम्पोर्टेंस ये है कि इसके थ्रू हम जो ब्रीड है, स्पीसीज है, उसको हम इम्प्रूव करते हैं फॉर द इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। इट इज इट इज यूज इम्प्रूव चांसेस ऑफ सक्सेसफुल प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड। जो हाइब्रिड है सक्सेसफुल, उसमें इम्प्रूव किया जाता है। दैट इज क्लियर। Second thing, cow is the administrated hormones with FSH like activity। ठीक है, काउ में जो होता है इंस्टर्ट किया जाता है जो हार्मोन्स होता है विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग प्रोडक्शन, दैट इज द FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। उससे एक्स में एक्टिविटी होने लगती है। इंड्यूस फॉलिकुलर मैचुरेशन एंड सुपर एवोल्यूशन। ठीक है, थर्ड प्रोसेस में क्या इन्वॉल्व होता है, इंड्यूस द फॉलिकुलर मैचुरेशन, जो मैचुरेशन का ड्यूरेशन होता है इंड्यूस हो जाता है, एंड सुपर एवोल्यूशन, एंड दे प्रोड्यूस मोर देन वन ओव्यूल्स मीन्स सुपर ओव्यूलेशन, मैनी ओव्यूल्स आर रिलीज नियर अबाउट 6 to 8। प्रोडक्शन ऑफ 6 to 8 eggs instead of 1 egg per cycle। ओके, एक साइकिल जो एक साइकिल होता है उसमें दैट इज रिलीज ओनली 1 egg cell inside the animal, but in case of MOT मीन्स मल्टीपल ओवल्यूशन एम्ब्रियो ट्रांसफर या टेक्निक में वी दैट इज प्रोड्यूस मोर देन 1 egg inside a single bodies, means that is produce 6 to 8 number of ovules। The female is either mated with the elite bulls or artificial insemination। इसके बाद उसके बॉडी में जो एग सेल है दैट इज द फर्टिलाइज्ड विथ, किसके साथ फर्टिलाइज किया जाता है, दैट इज द elite bulls, means that is the good breed of the bull that is used for increase the production of milk, उसके थ्रू उसमें क्रॉसिंग कराया जाता है। अदरवाइज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, आर्टिफिशियली उसके साथ फर्टाइल किया जाता है एक सेल को इनसाइड द बॉडीज। ओके, नेक्स्ट दैट इज द नॉन सर्जिकल recovery of fertilized eggs at 8 to 32 cells stages। ठीक, नॉन सर्जिकल बिना सर्जिकल किए हुए जो फर्टिलाइज्ड एग सेल है जब वो 8 to 32 सेल्स स्टेज के आते हैं देन कलेक्टेड देम। ओके, जब उसको कलेक्ट कर लेते हैं तो each one ट्रांसफ़र टू द सेरोगेट मदर। अब इसके बाद जो 8 to 30 सेल स्टेज के जो जाइगोट है, फर्टाइल एक्स मीन्स जाइगोट, इसको सेरोगेट काउ में ट्रांसफ़र कर देते हैं। क्लियर, द जेनेटिक मैटर इज अवेलेबल फॉर अनदर राउंड और सुपर एवोल्यूशन। ठीक, जो जेनेटिक मैटर उसमें प्रेजेंट है इज यूज द अगेन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एग सेल। ठीक है, तो एम्यूनिटी में अच्छी नस्ल की जो गाय है उसको यूज़ किया जाता है और उसमें इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ एग का प्रोडक्शन उसमें इंक्रीज किया जाता है थ्रू द FSH, जो हार्मोन्स उसमें इंक्लूड किया जाता है उसके बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। दिस द रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द more than 1 egg cell। ओके, जब उसके बॉडी में डेवलप्ड हो जाता है मोर देन 1 egg cell देन फर्टिलाइज, गुड वैरायटी का बुल है उसके द्वारा फर्टिलाइज कराया जाता है। अदरवाइज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराया जाता है। एवरीवन नो अबाउट द इंसेमिनेशन मीन्स ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट इज नोन एज द इंसेमिनेशन।
ठीक है। तो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, फर्टिलाइजेशन होता है इनसाइड द बॉडी, जो काऊ होती है, ठीक, मदर काऊ उसको बोल सकते हैं। अब उसके बॉडी में जब एम्ब्रियो डेवलप करता है 8 to 32 सेल स्टेज का, तो उसको कलेक्ट कर लिया जाता है एंड देन ट्रांसफर इनटू द सेरोगेट, जो अदर काउज है जिसमें डेवलप कराना है उसमें हम इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं और वहाँ पर नॉर्मली ग्रोथ करता है एम्ब्रियो। दैट इज क्लियर। व्हाट इज द टेक्नोलॉजी? Okay, you see here is the process. How can that develop multiple ovulation embryo transfer? टेक्नोलॉजी प्रोसेस क्या है इसके? You see here, this is the cow, good variety of cow that is used for the give the milk production. Yeah, that is contain the large milk production. They are mating with the sperm which taken from the bull from a high yield dairy herd. ठीक, डेयरी हेल्ड मतलब जिसके द्वारा फीमेल का फॉर्मेशन होता है, मिल्क प्रोडक्शन में जो बुल यूज़ करते हैं उसका हम प्रयोग किया गया है। ठीक, इसके एग्स को काउक्स के साथ फर्टाइल कराया जाता है, मीन्स बुल को डायरेक्टली या थ्रू द आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या डेवलप होता है? एम्ब्रियो। zygote developed into the embryo in cow and then removed from the uterus। ठीक है, यह एम्ब्रियो जब डेवलपमेंट हो जाता है तो यह रिमूव किया जाता है फ्रॉम द यूटेरस, और किस सेल तक? नियर आउट 8 to 32 सेल स्टेज का जब होता है तो उसको रिमूव कर लिया जाता है। एम्ब्रियो आर स्प्लिट इनटू द सेवरल स्मॉलर एम्ब्रियो ईच ऑफ विच कैन ग्रो इनटू ए न्यू कॉफ। ठीक है, छोटे छोटे एम्ब्रियो फॉर्म हो जाते हैं और इस एम्ब्रियो को दूसरे मदर के बॉडी में डाल दिया जाता है। ठीक है, दिस इज द एम्ब्रियो आर प्लेस्ड इन द यूटेरस ऑफ फॉस्टर मदर्स, मीन्स दैट इज द सेरोगेट मदर्स। ठीक, उसके बॉडी में डाल दिया जाता है और नॉर्मली जैसे ग्रोथ करता है इनसाइड द बॉडी, दैट इज ग्रोथ ईयर। ओके, सो व्हाट इज द एडवांटेजेस? इसका एडवांटेजेस क्या है मल्टीपल ओवुलेशन ट्रांसफ़र का? तो पहला है इंक्रीज द रिप्रोडक्टिव रेट ऑफ द एनिमल्स। जो रिप्रोडक्टिव रेट है एनिमल्स का वो इंक्रीज कर जाता है, बढ़ा दिया जाता है। नो सर्जरी इज रिक्वायर्ड। इस प्रोसेस में कहीं भी सर्जरी का रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, द इंटायर प्रोसीजर कैन बी इजली कैरिड आउट ऑन ए फार्म डेयरी जहाँ पर है वहाँ पे इसको ग्रोथ कराया जा सकता है इजली। ओके, द एम्ब्रियोज कैन बी फ्रोजन एंड स्टोर इन द लेबोरेटरी फॉर फ्यूचर यूज। जो एम्ब्रियो है, जो मल्टीपल एम्ब्रियो की बात कर रहे हैं, देयर इज मोर देन वन एम्ब्रियो आर डेवलप्ड, उस एम्ब्रियो को हम लेबोरेटरी कंडीशन में फ्यूचर के लिए यूज़ के लिए रख सकते हैं। ओके, लेबोरेटरी कंडीशन और टेम्परेचर प्रोवाइड करा करके। So what is the MOT? What is the advantage? What is the process? That is clear? Thank you. इस चैनल को लाइक करिए, जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब करिए एंड शेयर इट। ओके, अगेन थैंक्स।